Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students. Welcome to all in standard 12. First of all, congratulate to all for standard 12. Today we will start our standard 12 study. So concentrate here. I will take your two subjects in standard 12, accountancy and statistics. So today we will start with accountancy part 1, chapter number 1. So let's start and welcome back to all. Part 1, accountancy. Let's start. Chapter number 1, introduction to partnership. Today we will discuss about 4 points. Point number 1, the introduction of partnership, meaning and definition of partnership, characteristics of partnership, and number 4, partnership deed. So students, concentrate and let's start with chapter number 1, introduction to partnership. Introduction. The partnership form is emerged from capital and managerial limitations of sole proprietor firm. Following are the reasons for the emergence of partnership firm. Number 1. An individual has sufficient funds but does not have required skill. Number 2. An individual has required skill but does not have sufficient funds. And number 3. To distribute business risk. किस वजह से पार्टनरशिप बनती है? नंबर 1, कोई पर्सन के पास फंड है बट जो बिजनेस चलाने की स्किल होती है वो नहीं है, तो उसकी वजह से पार्टनरशिप बनानी पड़ती है। या फिर उनके पास स्किल है बट उनके पास जो उनको सफिशिएंट फंड होना चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है, तो उसकी वजह से पार्टनरशिप बनती है। या फिर नंबर 3, टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क। आप सब जानते हैं बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे रिस्क होता है बिजनेस में, तो वो रिस्क को कम करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप बनती है। नाउ नंबर 2, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership as partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. 1932 जिसे हम पार्टनरशिप एक्ट बोलते हैं, तो वो जो एक्ट के थ्रू जो डेफिनेशन बन के आई है, यहाँ पे पार्टनरशिप दो या ज़्यादा पर्सन्स के बीच का ऐसा रिलेशन है जो उनके बीच में जो प्रॉफिट बनेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर लॉस होगा उसे यहाँ पे पेड करने के लिए जो एग्री होते हैं। सबके लिए कोई एक पर्सन बिजनेस चला रहा होता है, या फिर कोई एक बहुत सारे पर्सन्स यहाँ पे मिलके एक बिजनेस को चला रहे होते हैं, उसे यहाँ पे पार्टनरशिप बोला जाता है। The person who enter into such relationship are individually called partners and collectively a firm. From the above definition, it can be said that two or more persons who are competent to undertake a contract to earn profit from a legal business. The business is termed as partnership. डेफिनेशन के थ्रू हम ये बोलेंगे कि जो दो या दो से ज़्यादा पर्सन इकट्ठा होके जो लीगली बिजनेस, कोई भी चीज़ का बिजनेस है उसे लीगली तौर पे स्टार्ट करता है या फिर उसे रन करता है, तो उसे यहाँ पे एक पार्टनरशिप बोला जाएगा। द बिजनेस रन कलेक्टिवली इन पार्टनरशिप बाय टू और मोर पर्सन्स इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. नंबर 1, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया जाता है, या तो ओरली यानी बातचीत करके भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, या फिर लीगली तौर पे यानी उसे हम रिटर्न फॉर्म में भी बना के यहाँ पे हम एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन के आ सकते हैं. Partnership emerges through agreement. Partnership agreement can be in written or oral form, but written form is desirable and advisable. Number 2, profit objective. Partnership firm forms to earn and distribute profit.
The distribution of profit or loss is done amongst partners in the predetermined proportion. As per Partnership Act, profit or loss is distributed in equal proportion if no provision is made in the contract. जब कोई भी पार्टनरशिप में आता है तो उसका फर्स्ट पर्पज क्या है? बिजनेस में प्रॉफिट लेना। यानी जब भी बिजनेस में पार्टनर बन के आता है तो उसके लिए पार्टनरशिप में आने से पहले वो डिसाइड किया जाता है कि उसे कितने हिस्से से प्रॉफिट मिलेगा या फिर कितने हिस्से से उसे लॉस होगी तो पेड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट और लॉस का एक यहाँ पे जो प्रपोर्शन है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है जब पार्टनरशिप बनती है तब। सपोज आप पार्टनरशिप में फॉर्म नहीं यूज़ करना चाहते तो इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जितने पार्टनर्स हैं उनको इक्वली प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर्म टू फॉर लीगल बिजनेस। दैट मीन्स कोई भी बिजनेस हो, इलीगली पार्टनर्स हो तो यहाँ पे इलीगली पार्टनर है तो फिर उसको यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। जैसे कि ड्रग्स जो हमारे इंडिया में इलीगल काम है तो वहाँ पे पार्टनर बनेंगे तो उसे पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला जाएगा। Agent of each other. The business of partnership firm is run by all the partners or any one of them for all or more than one partner. Thus, each partner is an agent of each other. यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन इकट्ठा होकर पार्टनरशिप बनाते हैं तो एक जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन का क्या रिलेशन बनता है? तो उनके बीच में एक एजेंट का रिलेशन बनता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स। द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 empowers the government to prescribe maximum number of partners in a firm subject to maximum of 100. The government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50 wide Rule 10 of the Companies Rules 2014. जो 2013 में जो कंपनी एक्ट आया है उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा से दो से ज़्यादा और 100 से कम पर्सन यहाँ पे एज अ पार्टनर बन के पार्टनरशिप फर्म में आ सकते हैं। और जो यहाँ पे जो बैंकिंग बिजनेस है, बैंकिंग का बिजनेस है, जो ऐसे बिजनेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10 पर्सन्स यहाँ पे क्या बन के आ सकता है? 10 पर्सन्स वहाँ पे एज अ पार्टनरशिप फर्म में आ सकते हैं। अनलिमिटेड liabilities. As per Partnership Act, partners are responsible to pay business obligation from their personal property. When the firm does not have sufficient assets to pay liabilities of the business, every partner individually and collectively is responsible to the partnership firm. Therefore, the liability of each partner is unlimited. यहाँ पे बिजनेस में पार्टनर है, सपोज बिजनेस में लॉस हुआ है तो जो लॉस के जो लायबिलिटी आती है लॉस के थ्रू जो बिजनेस पे लायबिलिटी बनती है तो जब तक बिजनेस में से एक लास्ट रुपीस पेड नहीं किया जाता तब तक सारे पार्टनर्स उसमें इक्वली उसके लिए जिम्मेदार बनते हैं। डैट मीन्स यहाँ पे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म। Partners are owner of business and they do the management of business. The management of business is done either by all the partners or by one partner by more than one partner. यहाँ पे मैनेजमेंट और ओनरशिप कैसे चलेगी? तो आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना फर्म चला रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई एक पर्सन चला सकता है, एक से ज़्यादा पर्सन चला सकता है। तो यहाँ पे ये भी आप पूरी डिसाइड कर सकते हैं। नाउ पार्टनरशिप डीड। जब कोई पर्सन पार्टनर बनता है तो उसके लिए पार्टनरशिप में आता है तो उसके लिए एक अलग से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है? तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड उसे बोला जाता है। द इमर्जेंस ऑफ पार्टनरशिप इज फ्रॉम द एग्रीमेंट। पार्टनर्स अंडरटेक एग्रीमेंट विदिन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। Partnership deed acceptable to all the partners is prepared at the time of the commencement of a partnership firm. The partnership agreement can be written or oral. A written agreement of partnership is known as a partnership deed.
A written partnership deed is desirable and advisable so that the solution of any misunderstandings or dispute in future can be obtained on the basis of the provisions of the partnership deed. The partnership deed is a administrative constitution of partnership firm where all provisions pertaining to firm's administration are included. Generally, the following content is included in the partnership deed. जब पार्टनर्स बन के आते हैं बिजनेस में, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं लीगली तौर पे, उसे यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। और पार्टनरशिप डीड में वो सारी चीज़ें, वो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है जो 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग हमें बनानी पड़ती है। जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनके थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करके उसमें बतानी पड़ती है, वो सारी पार्टनरशिप डीड में बनाई जाती है। ना नंबर 1, डिटेल ऑफ पार्टनर्स। पहले तो कितने पार्टनर्स हैं, उनका एड्रेस क्या है, वो कहाँ से, उनकी एज कितनी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड होगी। नंबर 2, डिटेल्स ऑफ फर्म। अपना बिजनेस का नाम कहाँ क्या है, कहाँ पे उसे आप स्टार्ट कर रहे हैं, कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका हाउस कैसा है, या फिर उसमें कितनी मशीनरी है, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएगी। टाइप ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें होगी। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट दैट मीन्स कब से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, तो वो जो डेट है वो वहाँ पे डेट लीगली तौर पे वो डेट वहाँ पे लिखनी पड़ती है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म कब से स्टार्ट होगा, वो सारी चीज़ें। कैपिटल, हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल लेके बिजनेस में आता है या फिर कितनी कैपिटल से बिजनेस को रन कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज आप पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उसको कितने % से इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो चीज़ भी पार्टनरशिप डीड में यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। ड्राइंग्स, जितने पार्टनर्स है, पार्टनर्स कितनी बिजनेस में से ड्राइंग कर सकता है, कितने टाइम पीरियड में ड्राइंग कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट पेड करना है या फिर नहीं करना है तो कितने % से करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इक्वली होगा या फिर उनके हिसाब से उन्होंने जो डिसाइड किया है उसके शेयर के थ्रू होगा, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड होगी। नंबर 10, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रिम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। कोई ऐसा पार्टनर है जो अपना ज़्यादा बिजनेस में काम कर रहा है, ज़्यादा अपना टाइम दे रहा है, तो उसको बोनस मिलेगा या फिर कितना कमीशन मिलेगा, कितना रिम्यूनरेशन मिलेगा या फिर कितना उसे कमीशन मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाती है। नंबर 11, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। जो बिजनेस में पार्टनर है वो फर्म को अलग से जब लोन देता है तो वो लोन पे कितने % इंटरेस्ट देना है, तो सपोज आप अपने कंपनी या फिर फर्म अपने हिसाब से डिसाइड करता है, तो उसके हिसाब से अगर उन्होंने डिसाइड नहीं किया है तो गवर्नमेंट के थ्रू 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस पार्टनर ने जब बिजनेस में लोन दी है तो उसे 6% इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। नाउ गुडविल जो कंपनी या फिर फर्म की गुडविल है वो किस मेथड से कैलकुलेट की जाएगी, हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में जानेंगे कि 4 टाइप से हम गुडविल को यहाँ पे काउंट करते हैं। तो हमारा फर्म कौन सी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेगा, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड है उसमें यहाँ पे डिफाइन की जाएगी। एडमिशन एंड रिटायरमेंट, सपोज बिजनेस के दौरान या फिर ड्यूरेशन में आप किसी पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, दैट मीन्स उसे एंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से रूल्स रेगुलेशंस है, तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी। सपोज कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है बिजनेस में से, तो उसके लिए कौन से रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे लागू होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होगी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सपोज आप अपने फर्म को कब तक चलाना चाहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो आप उसको बंद करना भी चाहते हैं या फिर उसका टाइम लिमिटेशन है, तो उसकी भी यहाँ पे एक डेट या फिर उसकी भी यहाँ पे एक डिटर्मिनेशन यहाँ पे क्लियर होगा। तो यहाँ तक पार्टनरशिप डीड में बिजनेस स्टार्ट से लेके कब तक एंडिंग होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाती है। तो ये जो है वो मेन डॉक्यूमेंट्स है पार्टनरशिप फर्म के मेन डॉक्यूमेंट्स है जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस रन करता है। तो आज हमने स्टूडेंट्स
पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और लास्ट में हमने पार्टनरशिप डीड देखा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से लर्न करके नोटबुक में लिखना है। इंशाल्लाह जो आगे का टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन बी सेफ। अस्सलाम वालेकुम।